The devastating flash floods in Ramban have also impacted the arterial Srinagar-Jammu National Highway. Now, this is the only surface link that connects Kashmir with the rest of the country, and that's why it is critical that it remains open. But the kind of devastation we have witnessed and the damage to the highway is enormous. You have complete mountains that have come down in the form of landslides which are blocking the highway at some locations, and then you also have long stretches of road that have been washed away by these flash floods. So the task is enormous for the district authorities and for BRO and other agencies to pool in their resources and ensure that this critical connect is opened at the earliest. On the other hand, the highway or the only surface link getting closed has had its adverse impact on the lives of the locals as well as tourists, because there are tourists who have got stuck. They had, in fact, had come using this particular surface route in cabs, in cars, and now they are stuck. On the other hand, you have locals who have some have medical emergencies, other reasons to move out, but they cannot afford the airfares because airfares right now have touched the skies. They've gone through the roof. There's an absolute loot in the name of airfares because sectors like Srinagar-Jammu, which is hardly a 25-minute flight, will cost you a bomb around 14 to 15,000. In fact, right now you don't even have online options because they're all sold out, and whatever is left is being sold at the rate of gold. So that is something that is impacting people. And now what they're asking as far as central government or state government is concerned, that why isn't the railways working? What happened to the prestigious project? When everything is ready, all the safety trials are done, security trials and security angle is done. So why isn't the this dream of an ordinary Kashmiri of Kashmir of getting connected with the railway line, why isn't the railways working? The project, which is complete, and it took years and years to build, thousands of crores, but right now when the people need it the most, it is non-functional. No answers from the authorities, from the railways, as to what is the real reason. Why isn't the Vande Bharat Express chugging? What is happening behind the scenes that the common man doesn't know? For him, it is pretty simple that the line is complete, everything is done. So why isn't the Kashmir train working? Because right now, if it had been in service, it would have led to enormous ease as far as the lives of the tourists and common man is concerned, because they would have had an option and they would not have been subjected to the kind of loot that is happening in the name of airfare. So that really is sentiment on the ground. And we spoke to tourists here. They're also stuck. They don't know how to go back. Now they're waiting for the highway to open, where there is absolutely no deadline. When will that happen? So it's an issue that the government needs to answer, to react on, because there is no cap on the airfares. This is a natural calamity. This is a disaster. So obviously, measures that would provide relief to the people should be taken. There are people who are also asking that why can't the Air Force come in, start sorties from Srinagar, take the people who are in distress, emergencies to at least Jammu, so that people can get respite. So all these things happening, but yes, airfares going through the roof, and it is the common man, it is the tourists who are suffering as the surface link Jammu-Srinagar National Highway is closed, and it may take many days to reopen. मेरा नाम परवेज अहमद गनाई है। मैं अनंतनाग से बिलोंग करता हूँ। ये कश्मीर लोगों के लिए खुशकिस्मती है, वंदे भारत ट्रेन जो कश्मीर और जम्मू को दिल्ली तक कनेक्ट कर रही है। तो 2-3 बार अनाउंस किया गया, अनफॉर्चुनेटली वो डेट अभी तक आ ही नहीं रही है कि वंदे भारत ट्रेन कनेक्ट करे दिल्ली और कश्मीर को। और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और इस हवाले से हम ये भी कहना चाहेंगे, अगर ये जल्द से जल्द कश्मीर को कनेक्ट करेगी तो इससे जो यहाँ का टूरिज्म है वो बढ़ जाएगा, और हवाई जो टिकट है ना वो बहुत ज़्यादा महंगी हो रही है। जो लोग कश्मीर आना चाहते हैं, जिनके पास पैसा ज़्यादा नहीं होता है, अगर ट्रेन कनेक्ट हो जाएगी कश्मीर तक, उनके लिए अफोर्डेबल होगा और वो कश्मीर विजिट कर सकते हैं। और एक बात हम यहाँ की गवर्नमेंट को बताना चाहेंगे कि ये जो वंदे भारत ट्रेन है, इसको कश्मीर से लेकर जो कटरा स्टेशन है वहाँ पर पैसेंजर्स को आगे जाके उतारा जाएगा। ये हमको समझ में नहीं आ रहा। गवर्नमेंट से हम ये गुजारिश कर रहे हैं कि सीधा
जिस तरह से बाकी स्टेटों में बाकी ट्रेनें चल रही है, इसी तरह से ये भी ट्रेन चले सीधा कश्मीर से दिल्ली तक। क्योंकि गवर्नमेंट ये भी कह रही है साथ साथ में कि यहाँ पे बिल्कुल पीस है, अमन है। तो इन चीज़ों से मतलब बिल्कुल इंसान को ये जो मतलब इन चीज़ों से अगर ये ऐसा करेंगे गवर्नमेंट, तो इन चीज़ों से दिल दुखता है, बड़ा मतलब इंसान को बड़ा मतलब रिग्रेट फील होता है कि हमको ये दो नज़र से क्यों देखते हैं। ये बताइए कि टूरिज्म और बिजनेस में कितना बूस्ट होगा? टूरिज्म और बिजनेस में बहुत सारा बूस्ट होगा, क्योंकि वहाँ के बाहर स्टेटों के लोग यहाँ पे आएंगे और यहाँ के लोग बाहर बिजनेस करेंगे, तो सीधी सी बात है। मेरा नाम तौसीफ अहमद है, मैं अनंतनाग से बिलोंग करता हूँ। तो ये जो वंदे भारत की बात चल रही है कि वंदे भारत यहाँ से जल्द से जल्द शुरू होनी चाहिए, क्योंकि एक तो यहाँ की जो इकोनॉमी है वो बूस्ट होगी, यहाँ की जो बेरोजगारी है। चाहे अगर हम कश्मीर की बात करेंगे, यहाँ पर कश्मीर जो 50% यहाँ पे जो लोग हैं वो टूरिज्म पे डिपेंडेड है। तो इस वंदे भारत से एक तो यहाँ का टूरिज्म बढ़ेगा, यहाँ का जो बिजनेस है, हम जब एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो उससे आसाइश होगी। अगर हम बात करें सर्दियों में, अभी सर्दियाँ खत्म हो रही है, तो जो हमारा नेशनल हाईवे है ये वोलाटाइल है। अगर हम बात करेंगे जो हमारा दूसरा नेशनल हाईवे है जो वया राजौरी है, वो बंद रहता है इन महीनों। अगर ट्रेन चलेगी, यहाँ का हाईवे है वो कंटिन्यू रहेगा, उससे यहाँ के लोगों को बहुत आसाइश होगी। तो हम चाहते हैं ये जो वंदे भारत ट्रेन है वो जल्द से जल्द चालू होनी चाहिए। अभी हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि अगर इसको ट्रायल भी की गई है 2-3 बार, पूरा सेट है, तो अभी जो वंदे भारत यहाँ पे चालू क्यों नहीं हो रहे हैं? हम एडमिनिस्ट्रेशन भी कहना चाहते हैं, हम सेंट्रल गवर्नमेंट से कहना चाहते हैं कि हम कश्मीरी यूथ होने के नाते हम चाहते हैं कि ये वंदे भारत, और दूसरी बात हम चाहते हैं कि जो वंदे भारत है जो ये यहाँ से श्रीनगर से लेके बराबर दिल्ली तक चली जाए, बीच में कोई स्टॉप नहीं होना चाहिए। मेरा नाम है जॉय दास, मैं आया हूँ वेस्ट बंगाल से। अभी जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, अभी हम लोग आए हैं घूमने के लिए, लेकिन यहाँ पे लैंडफॉल होने के नाते हम लोगों को रास्ता बंद हो गया है, फिर हमको वापस जाना पड़ रहा है, लेकिन वापस जाने के लिए कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। तो अभी हम लोग आए हैं ये स्टेशन पे, यहाँ से हम लोग ट्रेन पकड़ेंगे, फिर जाएंगे दूसरा जगह, वहाँ से गाड़ी लेंगे, फिर जाएंगे जम्मू, जम्मू से हम लोग ट्रेन लेंगे, फिर जाएंगे हम लोग दिल्ली, दिल्ली से वेस्ट बंगाल। तो ये जो प्रॉब्लम है ये ब्रेक जर्नी करके जा रहा है, इसमें बहुत सारा पैसा खर्च भी हो रहा है और इतना सारा लागेज वगैरह लेके हम लोग इधर उधर दौड़ना पड़ रहा है। अगर एक सीधा रास्ता हो जाएगा ट्रेन का तो हम लोग के लिए बहुत सुविधा होगा। तो ये मैं जम्मू कश्मीर का सरकार से विनती करता हूँ कि प्लीज़ आप लोग कुछ करिए, ताकि हम लोग को डायरेक्ट कोई ट्रेन मिल जाए, हम लोग आसानी से आ पाए, घूम पाए बेफिक्र होके, ताकि हम लोग को कोई टेंशन ना रहे। बताइए कहाँ से आए और कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा? जी, मेरा नाम सचिन भदौरिया है, मैं एमपी ग्वालियर से आया हूँ। बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। NH-44 पे जो लैंडस्लाइड हुआ है, अगर आज यहाँ से लोकल ट्रेन वगैरह अगर श्रीनगर तक के लिए या श्रीनगर से वाया दिल्ली के लिए ट्रेन चलता होता तो लोगों आगों में बहुत ही सारी सहूलियत होती, जो कि इस परेशानियों का खामियाजा नहीं भुगतना पड़ता। यहाँ का जो टैक्सी चार्ज, फ्लाइट चार्ज है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, जो हर लोग नहीं झेल सकते हैं उसको। क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए? लगता नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट को फर्स्ट प्रायोरिटी पे ट्रेन स्टार्ट करना चाहिए न्यू दिल्ली टू श्रीनगर जल्दी से जल्दी, जिससे लोगों की मुसीबत का सामना करने से बच सकें। तो ये मुझे बताइए कि टूरिज्म पे कितना खलल पड़ रहा है इसकी वजह से जो हाईवे बंद होता है? बहुत परेशान हो रहे हैं लोग, घबरा भी रहे हैं। कोई बोल रहा है 4 दिन तक नहीं खुलेगा, कोई बोल रहा है 8 दिन तक नहीं करेगा। इतने में टूरिस्ट कहाँ जाएगा? और पहली बात तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ कितना एक्सपेंसिव है, हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता ना, इसलिए ट्रेन इज़ अ मच मोर इम्पॉर्टेंट। मेरा नाम प्रीति शाह है, हम लोग वेस्ट बंगाल कोलकाता से आए हैं। हम लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। हम लोग कल अच्छे से घूम भी नहीं पाए पूरा पहलगांव, क्योंकि हम लोगों को आज सुबह जल्दी इधर आना था। एक्चुअली हम लोगों का बाई रोड था जम्मू तक, आज हम लोगों का ट्रेन है जम्मू से, लेकिन अभी हम लोगों को पहले इधर आना पड़ा, इधर से संगलधान हम लोगों को जाना पड़ेगा ट्रेन में, उसके बाद उधर से उतरकर फिर हम लोग को गाड़ी लेना पड़ेगा, गाड़ी से जम्मू जाना पड़ेगा। तो बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस और बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल हो जा रहा है हम लोगों का, और एक्सपेंस तो होगा ही इसमें, क्योंकि ट्रेन है, कार है, उसके बाद वापस हम लोगों का ट्रेन है, तो एक्सपेंस भी बहुत ज़्यादा हो रहा है इससे। अगर कोई डायरेक्ट ट्रेन होता तो हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है इसमें। बिल्कुल, अगर वंदे भारत स्टार्ट होता तो हम लोग तो आने के पहले भी हम लोग जिस ट्रैवल एजेंट से आ रहे हैं उन लोगों से हम लोग बात कर रहे थे कि वंदे भारत कब तक स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि अगर वंदे भारत स्टार्ट होगा तो सबसे आसानी हो जाएगी हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोगों का डायरेक्ट ट्रेन भी रहेगा, टेंशन भी नहीं रहेगा कि कुछ प्रॉब्लम हो ना हो। तो अगर ट्रेन होगा डायरेक्ट तो बहुत अच्छा होगा उसमें।
तो ये मुझे बताइए कि एयर टिकट होती है उसमें भी इजाफा हो गया, कितना एक्सपेंसेस कितना? बहुत ज़्यादा है। फ़्लाइट का टिकट जो है, अगर हम लोग कल का बात करें तो 13,000 रुपये एक पर्सन का लिए फ़्लाइट का टिकट है। अब हम लोग आए हैं कश्मीर घूमने के लिए, इतना पैसा ऑलरेडी लगता है, उसमें फ़्लाइट टिकट एक्स्ट्रा हम लोगों को 13,000 रुपये से करना पड़ता, और जो हम लोगों का ट्रेन कैंसिल होता उसका भी हम लोगों को पैसा वापस नहीं मिलता, क्योंकि एक दिन पहले कैंसिल करने से 25% रिटर्न आता है। तो हम लोगों के लिए खर्चा बहुत ज़्यादा हो जा रहा था, तो इसके लिए हम लोगों को अभी बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है, जिसमें भी खर्चा ही हो रहा है हम लोगों का, तो इसमें एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्या आपको लगता है कि अगर दिल्ली से डायरेक्ट श्रीनगर ट्रेन आती तो टूरिज्म में और ज़्यादा बूस्ट होता है यहाँ पर? एग्जैक्टली जो अगर कोई डायरेक्ट ट्रेन होता तो बहुत सारे टूरिस्ट होते जिनको और आसानी होती, और वो लोग भी आने के लिए सोचते बहुत ज़्यादा, तो टूरिस्ट लोगों को ये इफ़ेक्ट कर रहा है। अगर डायरेक्ट ट्रेन होगा तो बहुत अच्छा होगा। हम कर्नाटक से टूर के लिए आए हैं। दिल्ली देखकर कश्मीर को आए, अब देखकर गुलमर्ग सोनमर्ग सब देखकर इधर जा रहे थे दिल्ली को, ये प्रॉब्लम हो गया और कोई रास्ता नहीं है बोले तो बहुत तकलीफ होता है। इधर कुछ भी नहीं है, बच्चे हैं हमारे साथ, बहुत तकलीफ हो रहे हैं। ट्रेन टिकट फ्लाइट टिकट सब बुक हो गए हैं, इसलिए बहुत तकलीफ हो रहा है। हम लोग कर्नाटक से इधर मीन्स साउथ से आ रहे हैं, श्रीनगर से दिल्ली को जा रहे हैं हम। प्रॉब्लम तो ज़्यादा हो रहा है, बच्चे हैं, तबीयत ठीक नहीं है, अकोमोडेशन नहीं है, इधर सोने के लिए जा रहे हैं, नहीं बॉटल पानी भी नहीं है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, बहुत तकलीफ होता है। थोड़ा मदद किए तो अच्छा लगेगा। नहीं होते। हम कर्नाटक से टूर के लिए आए हैं। दिल्ली देखकर कश्मीर को आए, अब देखकर गुलमर्ग सोनमर्ग सब देखकर इधर जा रहे थे दिल्ली को, ये प्रॉब्लम हो गया और कोई रास्ता नहीं है बोले तो बहुत तकलीफ होता है। इधर कुछ भी नहीं है, बच्चे हैं हमारे साथ, बहुत तकलीफ हो रहे हैं। ट्रेन टिकट फ्लाइट टिकट सब बुक हो गए हैं, इसलिए बहुत तकलीफ हो रहा है। हम लोग कर्नाटक से इधर मीन्स साउथ से आ रहे हैं, श्रीनगर से दिल्ली को जा रहे हैं हम। प्रॉब्लम तो ज़्यादा हो रहा है, बच्चे हैं, तबीयत ठीक नहीं है, अकोमोडेशन नहीं है, इधर सोने के लिए जा रहे हैं, नहीं बॉटल पानी भी नहीं है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, बहुत तकलीफ होता है। थोड़ा मदद किए तो अच्छा लगेगा। नहीं होते। बहुत कर्नाटक से आए हैं जम्मू कश्मीर देखने के लिए। अब जम्मू जाना था, अब यहाँ अटक गए हैं हम। सो वी आर वेटिंग फॉर to clear the road, and when they give the intimation, we have to take and we have to move from here. So it has been blocked due to the sliding of the mountains, so we are suffering this. So we thought we can pass from this way. We can around 3.5 hours to reach 60 kilometer. There are totally 30 members with all children, छोटे बच्चे भी है और बहुत तकलीफ हो रहा है, 2 बीमार है। We are suffering from that.
है देखो छोटे छोटे बच्चे जो हैं कैसे इस वक्त रोड के ऊपर जो है, यहाँ पे पत्थर भी ऊपर से आ रहे हैं। और ये देखिएगा छोटे छोटे बच्चे जो हैं रोड के ऊपर चल रहे हैं। हालात जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है। यहाँ पे पत्थर भी जो है ऊपर से गिर के आ रही है बैठ चश्मा में। शोर नहीं हो बा, आस्ता आस्ता वो ऊपर, बस हो गया बस बस बस, कुछ नहीं होगा बस बस, मत रहो, कुछ नहीं है। छोटे छोटे पत्थर गिर के आ रहे हैं। पीछे देखो, हटाओ उसको, बोलो पीछे जाएगा। जाएंगे कहाँ, ये क्या बोलते हैं? यार उनका जेसीबी ऑपरेटर का अपना दरवाजा बंद की। मिनिमम इसका शॉट
With Umaysar Gul in Kulgam and Muzaffar Ahmad in Srinagar. Meet Farid for India Today.